मैं आईबी की हाँ। स्कॉलरशिप्स पढ़ा हुआ हूँ, तो आई रिमेम्बर हमारे ज़माने में एवरी सेमेस्टर की आपकी फ़ीस होती थी 24,000 रुपये। मैं स्कॉलरशिप स्टूडेंट था, तो हमें मिलते थे हर सेमेस्टर को 11,000 रुपये। और जो शॉर्टफॉल होती थी 13,000 रुपये की, वो ट्यूशन्स पढ़ा के करता था मैं। अच्छा, आईबी के आप स्टूडेंट हो तो आपको ट्यूशन्स भी आराम से मिल मिल जाती हैं। जाती है। एक स्टिग्मा था कि हम कारोबार नहीं कर सकते, हमारी फैमिली। हम्म। I really wanted to challenge that, and then I started Broomstick as one of the very first digital content agencies in the Middle East. We literally built our life up from scratch. मेरी story तो ये है कि I grew up in a very middle class family, moved, settled down in a place called Federal Bay area in Karachi. पहले साल हमाद भाई, the total amount of business जो Broomstick ने किया, मेरे कुल turnover for year one was 8,000 dirhams. हिम्मत बांधी, year two, total revenue 24,000 dirhams. गाड़ी बेच दी, सेविंग्स खत्म होना शुरू हो गई, स्टार्टेड टैपिंग इनटू। वालदेन को कानो कान खबर नहीं होने दी, क्योंकि वो फिर एक एक ईगो का मसला था। सो आई कॉल्ड माय फादर, मैंने कहा अब्बू एक गड़बड़ हो गई है। एंड ही इज लाइक व्हाट? मैंने कहा अब्बू, ईयर वन 8,000 dirhams, ईयर टू 24,000 dirhams। अब समझ में नहीं आ रहा है इफ आई कैन गो इन। बट ही सेड कि आई डोंट वांट यू लुकिंग बैक। मैं ये नहीं चाहता कि तुम ना जब 50-60 साल के हो जाओ मेरी तरह, एंड यू लुक बैक एंड यू से यार काश मैं एक साल और लगा देता। Today I have a very, very inspiring personality, Fahad Ali, joining me from Dubai. And we're going to do this podcast just to understand who Fahad Ali is. And I'm going to tell you why I am so inspired with his personality, with his vision, and whatever he is doing. I met Fahad 2 years ago in Canada. I heard about him through a common friend, but 2 years ago when we met and I had the opportunity to learn from him to discuss what he has been doing. He's an IBA graduate, which is the best, one of the best schools in Pakistan. He mentioned like it's like Harvard of Pakistan, which actually is true. Um, and what was his journey like when he graduated from IBA? What were the stumbling blocks? What were the challenges? And why things work, why things did not work, and how he then became an international entrepreneur, uh, starting from his journey coming back from Middle East. We will hear from him, but the story was so inspiring that I thought, I'm 61 and I got inspired. So I'm sure younger people who are of 16, 20, 26, 36, 46, they will also get some inspiration from Fahad. So Fahad, welcome to this little podcast. Thank you so much, Hamad Bhai, and thank you so much for that resounding and glorifying introduction. That's so kind of you. I guess I just have one thing to say, that it's all thanks to Allah, and obviously just belief in oneself, and prayers वालदेन की, फ्रेंड्स एंड फैमिली के, आज हम सभी एक किसी मकाम पे खड़े में। तो इट्स सो काइंड ऑफ यू, रियली अप्रिशिएट इट, थैंक यू। So no, absolutely. So we have to put in our efforts. The key thing is that if we are confused, if we are not sure where we are going, then of course things will not work. So हमें थोड़ा सा futuristic vision के साथ तो काम करना चाहिए. Although future will only uncover in future, but हमें उसकी तरफ काम तो करना चाहिए. So Fahd, we'll just directly jump into it. We'll try to keep it casual. We'll try to learn from you again. This is another opportunity for me. So your father used to work with BCCI, like it was like the bank, for Pakistanis, and you lived in the Middle East for quite some time, and then you had to return to Pakistan, right? So BCCI closed down, and your father and your family had to come back to Pakistan. I know that migration, it is actually a migration. People don't think about it, when you're working in the Middle East that you would ever be going back, but you all had to come back. I really want to start from there. Like it was, I know a lot of families who came back during Kuwait War as well as, during BCCI. Think my own brother-in-law used to work with BCCI and he had to come back. Uh, I know there are challenges. So what were some of the big challenges? Like immediately something had happened
to the family. You are young, other siblings as well. What was the feeling like coming back to Pakistan, and what were the challenges? Oh, that's a great start. So जिंदगी का सबसे humbling experience. I moved to the UAE, Abu Dhabi, when I was 6 months old, 1980 में. People should know how old I am. वालिद साहब मेरे बीसीसीआई में होते थे. Yes, he moved to the Abu Dhabi in 1976, and then he was with BCCI till the late 80s, 88, 89 तक. उसके बाद obviously BCCI closed down. इसमें थोड़ा सा segue ये था जिसमें मेरी entrepreneurship journey भी काफी interesting हो जाती है कि when the bank closed down, a lot of people were impacted. And चूंकि हम लोग वहीं बैठे हुए थे, so my father tried to become an entrepreneur for a year, Oh, year and a half. जिसमें उनकी ज़्यादातर ट्रेडिंग एक कंपनी छोटी सी खोली थी, and a lot of that business used to happen with Kuwait and the other parts of the Gulf. And then the Kuwait war happened. So we as a family lost everything. Now, when I say everything, I say we moved back to Karachi with literally just our suitcases. जिसमें कुछ मेरे खिलौने थे, कपड़े थे, एंड दैट्स इट. वी हैड जीरो सेविंग्स. हम चूंकि उस वक्त हालात ऐसे थे फैमिली के कि वी अब्बू ने वी डिडंट हैव अ हाउस टू गो टू, and we literally just landed in Karachi, and God bless my nana and my nani and my mamus. They welcomed us with open arms, and we were down to zero, and we had nothing. तो वी लिटरली बिल्ट आवर लाइफ अप फ्रॉम स्क्रैच. क्योंकि काफी लोग समझते हैं कि व्हेन यू कम डाउन अ सर्टेन पैथ एंड यू आर एबल टू सेट अप बिजनेसेस, एंड आप ग्रेजुएट करने के बाद थिंग्स आर रोजी. मैं सबको ये बताता हूँ कि मेरी स्टोरी तो ये है कि आई ग्रो अप इन अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, moved settled down in a place called Federal Bay area in Karachi. Then mere nana ne kafi need to have a bigger house for these kids, because they, in their minds, they thought they're used to a certain lifestyle. तो उन्होंने पैसे जमा करके, मामू ने पैसे जमा करके वी बॉट अ हाउस इन गुलशन इकबाल. अगेन वहाँ पे परवरिश हुई, वहीं पे ग्रो अप ओवर देयर. बीकन हाउस में पले बड़े. आवर पेरेंट्स सेड, मेड अस वन प्रॉमिस. दे सेड कि यार, डोंट आस्क अस फॉर एनीथिंग, बट या बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि हमने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी है to make sure you go to a good school. And then they got us into Beacon House. And I remember how every month jab fees jati thi, and we see this as we growing up, how our parents used to, get really uncomfortable at that time. Money was not easy to come by, and dad was going around looking for jobs. So it was a very, very tough time that we've seen as a family. And I think we just survived through it because of family. Our uncles, our, nana, nani, mamus, they all kept on bucking us up and said, this is just a phase. Money comes and goes. But belief, and just having a firm, resolute opinion on life is what really keeps you going. So, yeah. oh yes, oh yes. And I mean, I recall some of my stories as well. Very, very humble background. I was not lucky enough to go to Beacon House. So I studied in a Pila school, जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स होते थे उस जमाने में, नेशनलाइज्ड स्कूल्स होते थे. जाहिर है मैं आपसे एज में बहुत बड़ा हूँ. तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि पीले स्कूल को पीला स्कूल क्यों कहते थे. तो ये मैं आप लोगों को बता दूं. जाहिर सी बात है, दुनिया बहुत चेंज हो गई है. तो पीले स्कूल में जो उस जमाने का जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनका कॉन्सेप्ट ये था, सॉर्ट ऑफ कहना चाहिए कि वो कुछ चाइना या रशिया टाइप की चीज बनाना चाहते थे हमें. तो सोशलिस्ट कंट्री बनाना चाहते थे. तो वो बना नहीं बना वो अलग बात है. बट उन्होंने कहा जी स्कूल से शुरू करते हैं इसको, विच वॉज अ वेरी विजनरी थिंग बाय द वे. बिकॉज अगर आप बचपन से किसी के दिमाग में एक चीज डाल देंगे तो आपको ब्रेन वॉश करने की जरूरत नहीं है. यू हैव ऑलरेडी डन इट. तो वो सारे स्कूल जो थे गवर्नमेंट में सारे नेशनलाइज हो चुके थे, उनको सबको जर्द रंग कर दिया गया था. और जो हमारी यूनिफॉर्म थी वो भी जर्द रंग की होती थी. कमीज शलवार जर्द रंग की होती थी, और लड़कियां जो थी उनकी फ्रॉक होती थी और वाइट शलवार होती थी उनकी. सो वो इस वजह से पीला स्कूल कहलाता था. एक और चीज जो उसमें की गई थी कि उसमें क्योंकि जब तक वो प्राइवेट थी तो वहाँ डेस्क होती थी बकायदा, वो सब निकाल के वहां पे दरी बिछा दी गई थी. तो वो हम सुबह जाते थे, हमें पहले दरियां झाड़नी पड़ती थी क्योंकि जाहिर है सफाई का तो कोई एज यूजुअल सरकारी स्कूल में उस जमाने में भी कोई निजाम नहीं था. तो हम पहले दरियां झाड़ते थे, गंदे होते थे, फिर दरियां बिछा के फिर बैठ के पढ़ते थे. तो
अगेन द पॉइंट हियर इज, आपकी स्टोरी से भी और भी मैंने चीज देखी है कि इंसान जो है ना, जब तक सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ का शिकार रहता है, जब तक वो ग्रो नहीं करता। अम, बेशुमार लोग जो हैं वो बसों में सफर करके और कहाँ से कहाँ पहुंच गए। और मैं बल्कि आपसे पूछना चाहूंगा कि जब आप गुलशन इकबाल से जाया करते थे आईबीए, हम लेट्स लेट्स जंप ऑन टू हाँ। आईबीए, कि आप अच्छा। आईबीए जाया करते थे तो कौन सी बस लिया करते थे? अच्छा। अच्छा, आईबी चूंकि गुलशन के करीबी कराची यूनिवर्सिटी के अंदर जी, होता था, तो आ, पॉइंट से इतनी जाते थे? पॉइंट, अच्छा, पॉइंट अफोर्ड भी नहीं कर सकते क्योंकि मैं आईबी की हाँ, स्कॉलरशिप्स पढ़ा हुआ हूँ, तो अच्छा। मुझे याद है। अच्छा, अब तो खैर आईबीए बहुत ही महंगा हो गया है। आई रिमेम्बर हमारे ज़माने में एवरी सेमेस्टर, क्वार्टर में सेमेस्टर की आपकी फ़ीस होती थी 24,000 रुपये। और मैं स्कॉलरशिप स्टूडेंट था, तो हमें मिलते थे हर सेमेस्टर को 11,000 रुपये। और जो शॉर्टफॉल होती थी 13,000 रुपए की, वो ट्यूशंस पढ़ा के करता था मैं। तो हाँ, अच्छा, आईबी के आप स्टूडेंट हो तो आपको ट्यूशंस भी आराम से मिल मिल जाती हैं। जाती है। तो सब कहते हैं यार हमारे बच्चे को मैट्रिक इंटर कराना है, तुम तो पहुंच गए हो। तो ये होता था कि मैं अपनी गली में, आई यूज टू हैव 3 4 हाउसेस, और मैं हर घर में आके, मेरी मैथ्स बहुत अच्छी होती थी, स्पेशली कैलकुलस। सो आई यूज टू गो टीच मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स इन हर गली। हमारी गली के अंदर 4 घर होते थे, तो एक घर से दूसरे घर आई यूज टू मूव अराउंड। यानी कि क्या दौर याद दिला दिया आपने। और सो होता ये था कि सुबह अब्बू ऑफिस जाते हुए छोड़ दिया करते थे मस्कन से, वहां से आई यूज टू वॉक टू आईबीए। ओके, मस्कन से वॉक करते थे, अच्छी जी खासी वॉक है मस्कन, जी। जी बिकॉज काफी मैं वॉक। भी गुलशन इकबाल में जी। ही मेरी जो, जब तक मैं कनाडा वापस मूव हुआ हूँ, वो हम गुलशन में ही रहते थे। आई थिंक वी मूव देयर इन 93, 93 से लेके। 93 में। अच्छा। और वो उस जमाने की जब आप बात कर रहे हैं, ये किस सन की बात है, क्या क्या ईयर था? सो हमारे पे ये बात है 1999 की। अ, 99 की? अच्छा, इसमें इससे पहले भी बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है, एंड आई डोंट वांट टू स्पेंड टू मच टाइम ऑन इट। मैंने अपना इंटर किया था आदम जी से। हाँ, ओके। आदम जी हम जाते थे, हाँ, गुरु मंदिर पे होता था G7, एक बस जाती थी हाँ। सीधी मुझे, और वो वहाँ उतारती थी। वापसी में हम छत पे सफ़र करते थे, क्योंकि कभी कभार किराया बचा लिया करते थे, क्योंकि हम्म, कंडक्टर ऊपर नहीं आते थे कभी कभार। हाँ। सो जब इंटर किया, आई गॉट इनटू कराची यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम में। हम्म, उसमें 5,000 एप्लीकेंट्स होते थे और 120 सीट्स होती थी। सो आई गॉट शॉर्ट लिस्टेड, एंड उसमें हो गया। एंड घर में खुशी के शादियाने बजने लगे कि सादिया ने चलो, भाई। बच्चा तो हमारा अब सेट हो गया है। एंड मैंने कराची यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में एक सेमेस्टर गुजारा है, एंड आई जस्ट couldn't फिट इन दिस। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मेरा दिल नहीं होता था क्लास में बैठने का। इट सीम लाइक मैं बैठा होता था कंप्यूटर आर्किटेक्चर विच वाज अ प्री रैक, उसके बगैर आप आगे नहीं आते, मैं क्लास में बैठा होता था और मुझे, आई जस्ट, आई डोंट नो, दैट वाज वन फेज ऑफ माय लाइफ कि मुझे समझ भी नहीं आता था कि बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। बुलियन अलजेब्रा हो रहा है, एंड और नॉट और गेट्स हैं, बट आई एम लाइक यार व्हाट इज दिस। तो हुआ ये कि मैं कराची यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट से अपने निकल रहा था, सामने से आईबीए की पॉइंट जा रही थी, बिल्कुल एडजेसेंट होते थे। तो हम्म, आई आज समवन, कुछ स्टूडेंट्स जा रहे थे, मैंने कहा यार ये आप लोग कहाँ से आ रहे हो? तो उन्होंने कहा यार, विद अ बिट ऑफ चिप ऑन द शोल्डर, उन्होंने कहा हम जी हाँ, आईबीए से हैं। मैंने हाँ, कहा वो क्या है? तो आई वेंट होम, आई कॉल्ड अप माय मामू जो उस वक्त एएनसी गंडलेस बैंक होता था। मैंने कहा ये आईबीए हाँ। क्या है? उन्होंने कहा यार इट्स अ ग्रेट इंस्टीट्यूट, वहाँ का एमबीए तो सीधा जस्ट बिकम्स अ सीईओ। तुम्हें क्या करना है? मैंने कहा सोच रहा था मैं वहाँ जाके चेक करूँ। उन्होंने कहा ड्रॉप एवरीथिंग एंड जस्ट गो टू आईबीए। एंड आई लिटरली ड्रॉप्ड एवरीथिंग। मैंने अपना एग्जाम्स भी नहीं दिए। जिस दिन मेरा एग्जाम था कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में फॉर कंप्यूटर आर्किटेक्चर, मैं बैठा हुआ आईवी के एंट्रेंस टेस्ट के ग्रुप डिस्कशन में बैठा था, तो विच इज द बिगेस्ट रिस्क आई हैव टेकन इन माय लाइफ। इफ आई वुड हैव फ्लंक्ड आईवीए, मैं कराची यूनिवर्सिटी से भी जाता, आईवी का भी दरवाजा बंद होता, एक साल जाया भी होता, और घर में जो होना था मेरे साथ वो तो फिर या ना याद रहे तो बेहतर। सो दैट्स हाउ द नो बट, स्टोरी वाज। या। राइट, अमेजिंग। तो दो तीन चीजें इससे जो है वो सामने, जो कि मैं चाहूंगा कि हमारे जो लिसनर्स हैं वो इसको इससे इंस्पायर हो। देखिए, एक तो ये कि मुझे पता है जो लोग कराची आइट हैं या गुलशन इकबाल में रहते हैं, कि उस जमाने में मस्कन से कराची यूनिवर्सिटी तक आईबीए जाना, वो जो रोड है वो काफी सुनसान और बयाबान का इलाका है। ये अब तो खैर बहुत डेवलप्ड है, और वहाँ पे बल्कि गाड़ी चलाने की भी जगह नहीं होती सही से। बट जिस जमाने की ये बात कर रहे हैं, उस वक्त पे वो एक ऐसी जगह थी जहाँ मैं अदरवाइज जाना पसंद ना करूं। भाई, मस्कन का जो इलाका था, आपको याद ही होगा, बहुत मशहूर था।
ड्यू टू अ पॉलिटिकल पार्टी, और वहां पे काफी ज्यादा हंगामे रहते थे और गोली फायरिंग वगैरह भी अक्सर होती थी. बट इसी, अगेन, लाइफ में अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो यू नो मैं अक्सर कहता हूँ जी, आप बाहर रोड पे गाड़ी चलाते हैं तो दैट्स ऑल्सो अ रिस्क, राइट? कि खुदा ना खास्ता, हम यहाँ पे, आपको पता है कि मौसम खराब होता है यहाँ कनाडा के अंदर, और बाद वक्त आइस हुई भी होती है सड़क के ऊपर, और आपको फिर भी गाड़ी चलानी होती है. सो यू यू लर्न एंड यू टेक दोज रिस्क इन लाइफ. एंड वो एक बड़े जबरदस्त ट्रिगर्स होते हैं आपकी लाइफ में आगे जाने के लिए, वो जो वो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं. एंड द ओनली रीजन फॉर दैट इज others are not taking that risk. True, true. You are the only one who's taking that risk. So if you are the only one taking that risk, जो chances हैं वो अगर आप उसमें click कर जाते तो you would actually go far. And I think this is what exactly happened with you, IBA. So IBA से कब graduate किया आपने? मैंने ग्रेजुएट किया इन 2003, जो BBMBA प्रोग्राम होता है उससे. 2003 में, जी ठीक है. 2003 में अब आप graduate हो गए. जी. So basically, either you graduate, there's a stamp, you get the job, and you are थोड़ा सा कलफ भी लग जाता है ना आईटी वैसा वालों वैसा. के अंदर. मैं उस वक्त का मुझे पता नहीं, मगर अब आपके अंदर बिल्कुल कलफ नहीं है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि आप अब एंटरप्रेन्योर हैं. बट वो बताइए, आपने ग्रेजुएट किया, क्या वो कलफ था? नंबर वन, पहली अपॉर्चुनिटी क्या मिली? So, Ahmad bhai, contrary to popular belief, when I graduated, opportunities were there, but they weren't just falling in our laps. And this is a very honest feedback. अच्छा, हमारे batch within 6 months IBA, BBA, MBA program से, there were almost more than around about 200 graduates who had hit the market. IBA की intake भी बढ़ चुकी थी, अब तो खैर बहुत ज़्यादा है. वो दौर चला गया जब IBA से कुछ 40-50 लोगों के बैचेस निकलते थे. तो हमारे दौर में there was a lot of MBAs. So in the banking industry and everyone had just flourished at that point in time. तो I applied, तो अल्लाह का शुक्र, हाँ ये होता था कि IBA के ग्रेजुएट को नौकरी जरूर मिल जाती थी. 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना मैक्स, लेकिन आपकी कहीं ना कहीं प्लेसमेंट हो जाती थी. अच्छा, आई डेंट गेट इनटू यूनिलीवर में कुछ नहीं हुआ, ICI में कुछ नहीं हुआ, स्टैंडर्ड चार्ट में कुछ नहीं हुआ, एंड आई स्टार्टेड गेटिंग रियली वरीड. अच्छा, तबीयतन आई वाज, UBL से ऑफर आ गई. आई डिड नॉट वांट टू गो टू अ बैंक. हालांकि पूरे खानदान में बैंकर्स थे, एक स्टिग्मा था कि बैंक में नौकरी नहीं करनी. हालांकि मैंने लेटर ऑन माय करियर में की, बट नॉट एज अ बैंकर. तो माय फर्स्ट जॉब वाज विद इंडस टीवी. जो Oh, इंडस, okay. यस, इंडस अच्छा. म्यूजिक, इंडस विजन. And I was the one of the very first, the second IBA graduate Indus TV had hired. SN Ali, who was the son of Ghazanfar Ali, the founder, he had come in from the US. He was reforming the whole organization. MTV Pakistan launch होने वाला था. कंपनी की restructuring हो रही थी, and I got in at perhaps the best time ever. मेरे पास दो ऑफर्स थी, इंडस टीवी और UBL. मैंने कहा यार MTV पाकिस्तान लॉन्च करेंगे, इससे अच्छी क्या बात है. सो देन आई ऑप्टेड फॉर इंडस टीवी, एंड दैट वाज माय वेरी फर्स्ट जॉब. जी. ओके. सो आप जो है वो आईबीए से निकल के फिल्म मेकिंग में चले गए, बेसिकली देखना चाहिए एंटरटेनमेंट में. कि जी. समथिंग टू डू विद एंटरटेनमेंट, राइट? एग्जैक्टली, तो यस. मतलब ये इसे घर वालों के अंदर, फ्रेंड सर्कल के अंदर, आपके क्लासमेट्स जो आपके साथ ग्रेजुएट हुए थे, व्हाट वाज द रिएक्शन लाइक? अच्छा, फ्रेंड सर्कल में तो बड़ी वाहवाह हुई, बिकॉज एवरीवन थॉट आई वाज हैंगिंग आउट विद द सेलिब्रिटीज. ग्राउंड रियलिटी लोगों को पता नहीं होती है कि बिहाइंड द सीन्स लिटरली इतनी ग्लैमरस नहीं होती मीडिया इंडस्ट्री में. घर वालों में हाँ, एक तजब्जुब सा, एक माहौल सा पैदा हो गया था कि तुम अपनी डिग्रीज आया कर रहे हो, व्हाई आर यू गोइंग टू अ टीवी चैनल. सम ऑफ देम वर सपोर्टिव, others were, because my parents always knew कि मैंने हमेशा अपनी ही एक तौर से मनमानी तो मैं नहीं कहूंगा, but I've always taken my own decisions. My father was, he's like कि यार तुम्हें जो करना है करो, I trust your judgment. अम्मी was like कि देख लो, you know how moms are always very protective. हाँ. So she was like, you should join a bank, secure नौकरी है. But my parents were very supportive. They never really got into dictating anything. And they'd seen the life we've seen, जिस तरह मैंने आपको बताया था. हम्म. So they'd crossed that path where they wanted to dictate things. They really felt कि I should take this call and own it. So it was, parents were very, family में हाँ थोड़ा सा ये था कि लोगों को थोड़ा सा concerns थे.
बट फ्रेंड्स में तो माय फ्रेंड्स आर ऑल वेरी सपोर्टिव। आई व्हेन एवरी टाइम आई वेंट, हर कोई पूछता था तुम मायरा खान को जानते हो, अनुषा को जानते हो, डीनो को जानते हो। सम ऑफ देम आई नो ऑब्वियसली फ्रॉम, बट नॉट ऑल ऑफ देम। ये जो नाम नहीं है, आई डोंट नो देम पर्सनली, बट या द previous generation of people from the industry, I got to hang around with them. Very enriching experience in terms of learning. राइट, सो आपने पूरे, कहते हैं हमारे उर्दू में एक जुमला है कि आपने दरिया को कूजे में बंद कर दिया एक लफ्ज कह के, वह है इनरिचिंग एक्सपीरियंस। जी। तो आप नेक्स्ट 60 सेकंड में मुझे बताइए एक दो इनरिचिंग एक्सपीरियंसेस जो कि आपकी पहली जॉब पे, और एक ऐसी जॉब पे जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था कि आप उसमें जाएंगे, आप गए, एंड व्हाट वर लाइक वन और टू इनरिचिंग एक्सपीरियंस इन दैट जॉब दैट एक्चुअली हेल्प्स यू इन योर लाइक फ्यूचर एंडेवर्स एज वेल। Number one, Ahmad bhai, you're putting me on the spot here. कूजे में बंद कर दिया और कूजा खोल दिया अचानक से। सो नंबर वन वाज अचीविंग मोर विथ लेस। एफिशिएंसी जो एक टर्म है ना, वो इज समथिंग आई सीन एट प्ले एट माय वेरी फर्स्ट जॉब, बिकॉज ये वो बड़े बिजनेस नेटवर्क्स नहीं है, you know, TV networks in case money was freely flowing. It was all bootstrapped. So that was one thing we really learned very well as to how to be super efficient in terms of managing money, which is at your disposal. Secondly, timelines, the craziest timelines ever. कि 24 घंटे was an entire lifetime in the media industry. चीजें आपको करनी होती थी within half an hour, within 60 seconds. उस वक्त लाइव का एक कॉन्सेप्ट होता था, जो अब तो जाहिर है we're in a different state altogether, but you could not, going on air live a minute late was a very expensive mistake. So that is the other thing we really learned very well: achieving more with less and being super duper active on your feet in terms of timelines. That was something I really walked out with. ऑसम। सो आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मेरा थोड़ा सा ताल्लुक मीडिया इंडस्ट्री के साथ रहा, नॉट डायरेक्टली इन प्रोडक्शन या कोई चीज, मगर जब मैं ब्रिटिश डिप्टी हाई कमीशन में जॉब करता था, आई हैड एन एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्क एज अ सॉर्ट ऑफ अ पीआर एंड प्रेस ऑफिसर। तो वो फुल टाइम रोल नहीं था, बट उसमें जब भी कोई दुख तकलीफ होती थी पीआर से रिलेटेड, तो वो हाई कमिश्नर या डिप्टी हाई कमिश्नर मुझसे मेरे पास आते थे, तो मेरा नेटवर्क था, लोग मुझे जानते थे। तो एक एग्जांपल मैं यहाँ दूंगा आपको कि कितना टाइमली, कितना प्रॉम्प्ट डिसीजन, आई वुड कॉल टाइमली प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग जो है ना, आपकी पूरी की पूरी एफर्ट को कहाँ ले जाती है। तो ड्यूरिंग गल्फ वॉर हमने एक इंटरव्यू प्लान था जियो टेलीविजन के ऊपर हमारे हाई कमिश्नर का। हाई कमिश्नर जो था उनका नाम था मार्क लायल ग्रांट, अगर आप ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे वो, आई डोंट नो कि स्टिल लाइव और नॉट, अमेजिंग पर्सन। और उनकी मजे की बात थी, जो लायलपुर जो क्या फैसलाबाद कहलाता है, वो उनके दादा के नाम पर रखा गया था उसका नाम, तो इस वजह से मार्क लायल ग्रांट उसका हाँ, नाम था। ओके ठीक है, तो अच्छा, दूसरी मजे की बात ये थी कि वो उर्दू बोलता था, ओके। नॉट फ्लुएंट बट प्रीटी डिसेंट, वो उर्दू बोलते, क्योंकि वो पहले ही पोस्टिंग रही थी और जबान सीखने का शौक था। तो हम जियो टेलीविजन में खड़े हुए हैं फ्लोर के ऊपर, और सेटअप हुआ हुआ है, गाजी सलाउद्दीन साहब हैं और दो लोग और हैं, मुझे याद नहीं उनका नाम। गाजी साहब से भी मेरी अच्छी सलाम दुआ थी, तो वो मुझे हमेशा याद रहता है। तो वो थे, सेटअप हुआ हुआ है सारा, लाइक डिस्कशन चल रहे हैं साइलेंट पे, क्या डिस्कस करना है। मीर शकील उर रहमान आते हैं। हम्म। नाउ आई मीन एमएसआर की जो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस या शार्पनेस है ना, वो आई मीन आई हैव नॉट सीन अ पर्सन लाइक हिम, जो कि इस तरह, खैर वो मेरे पास आते हैं, तो बिकॉज ही न्यू मी वेरी वेल, हमाद ये उर्दू बोलता है। मैंने कहा कि उर्दू लिख सकता है? आई हैव नो आइडिया। जल्दी से कागज लाओ, कागज लाओ, एक प्रिंटर से कागज निकाला गया, एक पेन के, इससे कुछ लिखवा दो उर्दू के अंदर, अगर लिख सकता है तो। तो मैं हाई कमिश्नर के पास गया, मैंने कहा, कैन यू राइट इन उर्दू? कहती है लिटिल बिट। तो मैंने कहा अच्छा ओके, दे वांट समथिंग फ्रॉम यू हैंड रिटन ऑन दिस पीस ऑफ पेपर। सो ही टुक द पीस ऑफ पेपर, और इसने लिखा क्या मुझे आज तक वो याद है, मैं बहुत खुशी से पाकिस्तान वापस आ गया हूँ, मार्क लायल ग्रांट, उर्दू में उसने लिखा। अब देखिए जियो जंग ग्रुप के, दे आर द माइटी लोग हैं, उन्होंने क्या किया कि दे टुक दैट एंड दे एक्चुअली डिड क्वार्टर पेज एड्स रनिंग विद दैट हैंड रिटन नोट, कि जी ये शो आ रहा है और इसमें ये डिस्कशन है और 3 दिन के बाद होगा, एंड दे कंटिन्यूअसली
उन्होंने अब सारी पब्लिकेशन बना किया। Wow. नाउ मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो ही टुक रिस्क कि उसने आके मुझसे कहा कि ये कर सकते हो, सो आस्किंग, आई आस्क, इट वर्कड आउट। उन्होंने हाथ से लिख के दिया, एंड लिटरली दैट ऑन दैट पर्टिकुलर डे बरतानिया की जो सरकार है उन्होंने मुझे जो तमगे पहनाए, आई मीन मैं अब उस तफसील में जाने वाली बात नहीं, बहुत पुरानी हो गई, बट दे वर आउट ऑफ देयर कि ये हाउ डिड यू डू दैट। मैंने कुछ नहीं किया, बिकॉज मैं वहां मौजूद था, आई टुक दी अपॉर्चुनिटी और मैंने उसको फैसिलिटेट किया। सो रिस्क लेना, पूछना, इंक्यूजिटिवनेस, क्यूरियोसिटी जो भी आप कह लें उसको, दैट एक्चुअली रियली वर्क्स वंडर्स इन आवर प्रोफेशनल कैरियर्स। सो आईबी हो गया, एमटीवी हो गया, और क्या किया जॉब में, और देन आई वुड रियली लाइक टू जंप ऑन टू Sure. ब्रूमस्टिक। तो मेरी काफ़ी इंटरेस्टिंग करियर पाथ है। इंडस टीवी में काम किया, देन आई गॉट अ जॉब एट लैक्सन टोबैको, ओके। cigarette bechi for a year. Very interesting experience again. Laxon Tobacco was at that stage. बातें चल रही थी कि Philip Morris is coming. They'll be acquiring Laxon Tobacco. So me and two other graduates, and we're still great friends. हम लोग इकट्ठे ही इंडक्ट हुए। पूरा पूरा तो नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसा ऐसे इस हद तक पाकिस्तान देखा जो शायद मुझे कभी मौका ना मिले। द ब्रांड्स मेरे पास थे उस वक्त, आपको मॉर्वन गोल्ड, डिप्लोमेट, रेड एंड वाइट। ये वो ब्रांड्स नहीं थे जो आप कराची में आपको डीएचए, क्लिफ्टन या गुलशन के किसी सुपरमार्केट में मिलेंगे। ये आपको सुराब गोल्ड के अंदर बिकते थे। सेवन में मेला होता था, सबसे ज़्यादा सिगरेट जब बिका करती थी। भलवाल, साहिवाल, सरगोदा, मियाँ वाली बेल्ट, रहीम यार खान की पूरी बेल्ट, सदर्न पंजाब बेल्ट। तो हमें वो डाल दिया करते थे एक सुजुकी के अंदर, पीछे डब्बे होते थे जिसमें पोस्टर होते थे, एक सोल्यूशन ग्लू होता था, इसको सरेश बोला जाता है। और हमारी ड्यूटी होती थी कि आपने जाना है जगह जगह, मार्केट विजिट करने, पोस्टर लगाने, विजिट करने, पोस्टर लगाने। सो सक्खर से लेके ड्राइव करके गए। अब तो खैर मोटरवे बहुत अच्छी हो गई है, सुजुकी में हमें डाल के भेजा गया ऑल द वे अप टू पंजाब। लर्नड अ लॉट, traveled Pakistan, met people. The topography of the land changes every 50, 60 kilometers, 100 kilometers. You appreciate your country a lot more, and आपके अंदर एक एक्सेप्टेंस बढ़ती है, क्योंकि हम जिस दौर में पले बड़े थे, एंड एज यू नो, यू फ्रॉम कराची, कि यू डोंट रियली रियलाइज कि आपके मुल्क के अंदर कितनी डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी, कितनी आज तो बातें हो रही हैं वो जब से कितनी इंपॉर्टेंट थी। बिकॉज जब आप जाते हैं, यू मीट न्यू पीपल, यू रियलाइज कि देयर इज अ कॉमन स्ट्रिंग अटैचिंग ऑल ऑफ अस, वी आर ऑल जनरली good human beings, right? We want to appreciate, respect each other. So that was great. एक साल वो किया, then I got a call from a now a dear friend from Islamabad who was at Mobilink. Uh, Call आई के इस्लामाबाद आने, मोबिलिंग में जॉब करनी है। So then I said yes, interview हुआ, then I joined Mobilink as the assistant brand manager, brand executive, and then I got promoted for Jazz, जो उस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड होता था, even bigger than Pepsi in terms of brand equity. Worked on that for a good 4 years. उसके बाद I got a great offer from Jio TV as the ओके। general manager for AG, the youth channel. So I got a call from a dear friend of mine who is still at Jio, okay, we need someone young who can run this channel because this is the voice of the youth. We're not looking for someone who's got white hair, who's going to come in and run this like a typical TV channel. Once in a lifetime opportunity, signed up, came to Karachi, एक साल आग पे काम किया, alhamdulillah managed to turn it around, make it break even as a profitable entity, worked with a great team, very challenging again, low, smaller resources, efficiency, एक organization को turn around करना. Did that, and then while I was at Jio, I got headhunted for a position in Dubai for HSBC as the head of strategy and innovation Middle East. वो मेरी थी एंट्री वापस बैक टू दुबई इन 2008. फिर दुबई में काम किया एज हेड ऑफ स्ट्रेटजी फॉर मिडल ईस्ट, एंड उसी असना में अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट प्रमोटेड टू अ ग्लोबल प्रोजेक्ट एंड वर्क स्ट्रीम. उसमें आई वाज इन दैट वर्क स्ट्रीम द हेड ऑफ ग्लोबल कस्टमर कम्युनिकेशंस, सिस्टम्स डिज़ाइन किए, इकोसिस्टम डिज़ाइन किए, कस्टमर जर्नीज डिज़ाइन की, एंड ये मैंने काम किया 2012 तक. ड्यूरिंग दैट टेनर द बैंक made me travel around the world. Hong Kong जा रहे हैं, न्यूयॉर्क जा रहे हैं, ये कर रहे हैं. And while I was there, I realized that the world is moving towards content. The infrastructure was growing exponentially,
So the pipeline was growing, but content was just still dripping through. And that is when I thought कि I met an agency in New York जो अपने आप को कह रहे थे हम एक digital content agency हैं. And I sat down and I understood from them what content was. So वापस आया, I was being transferred to London, the headquarters for HSBC. मैं अपने वालिदैन से दूर नहीं जाना चाह रहा था. दुबई से उस वक्त 24 फ्लाइटें होती थी दिन में. It was easy to fly to Karachi from Dubai than to Mm-hmm. fly from Karachi to Lahore or Islamabad. तो बस की तरह चलती. तो I did not want to be far away and I opted to leave the bank. It was a very difficult decision. उस पे मेरे काफ़ी इख्तलाफात हुए फैमिली पे. But I wanted to be an entrepreneur. I just wanted to do something on my own. I wanted to make amends with the fact कि मेरे फादर ने बिजनेस किया था and वो एक स्टिग्मा था कि हम कारोबार नहीं कर सकते हमारी फैमिली. Mm. I really wanted to challenge that, and then I started Broomstick as one of the very first digital content agencies in the Middle East. So 2003 में you graduated and 2000 around 2015 आपने शुरू की अपनी एजेंसी 2013 के शुरू में. Yeah, 13 शुरू तो 10 साल आपने yes, yeah, इंडस्ट्री में काम किया. correct. नाउ और मैं कुछ मेरे दिमाग में सवालात हैं Sure. ब्रूमस्टिक से के अराउंड. मगर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज एक बच्चा ग्रेजुएट करता है या करने वाला है या वो लोग जो कि अब आईबीए में गए हैं या आईबीए जैसे और इंस्टीट्यूशंस के अंदर हैं. देखिए आपका भी कोई रोड मैप डिफाइंड नहीं था. True. लाइक यू एक्सपेरिमेंटेड अ लॉट. मगर आज अगर आप किसी एक यंग बच्चे को सजेस्ट करेंगे तो क्या उसको सजेस्ट करेंगे कि वो रोड मैप होना चाहिए या उसको अपनी अपॉर्चुनिटी को के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को देखना चाहिए या चेंज करना चाहिए? वेरी ब्रीफली. I think Ahmad bhai, I would agree with the latter. अपनी अपॉर्चुनिटी को देख के ही अपना रोड मैप डिटरमिन करें. बिकॉज मैंने ये किया था. मैंने जब व्हेन आई डिसाइडेड टू लीव द बैंक, मैंने 6-7 महीने सिर्फ प्रेपरेशन की थी फॉर एग्जिट. ये ओवरनाइट डिसीजन नहीं था. आई डिडंट से कि कल से मैं अपना काम करूंगा, मैं रिजाइन कर दूंगा. आई वर्कड टूवर्ड्स दैट एग्जिट प्लान. क्योंकि ये भी प्लान था कि जिस दिन मेरी जॉब खत्म होगी उसके अगले 6 महीने क्या, व्हाट वुड दो 6 मंथ्स बी लाइक. एंड मेरा गोल ये था, द डे माई जॉब एंडेड आई वॉज टेक्निकली सेल्फ एम्प्लॉयड द नेक्स्ट डे. मैंने लिटरली काम शुरू कर दिया था, और वो चाहे कंपनी फॉर्मेशन हो, स्ट्रक्चर हो, क्लाइंट्स हो. तो आई डिड नॉट वेस्ट अ मोमेंट बिकॉज आई कुड नॉट, आई डेंट हैव दैट लग्जरी. तो मेरा आज भी मशवरा यही होता है कि काफ़ी सारे आईबी के ग्रेजुएट्स और स्टूडेंट्स मुझे अप्रोच करते हैं एंड क्वार्टरली एंड एवरी मंथली व्हेन एवर आई एम ट्रैवलिंग आई सिट डाउन विद द अलुमनाई. मेरा एडवाइस ये होता है कि असेस द अपॉर्चुनिटीज एंड क्रिएट योर रोड मैप अराउंड इट. जज्बाती फैसले ना करें, फैसले जरूर करें. आजकल के दौर में यू हैव अ क्वेश्चन, जो मेरे दौर में नहीं था. मेरे दौर में कोई फंडिंग की बातें नहीं होती थी. मेरे दौर में कोई इंक्यूबेटर्स नहीं थे. मेरे दौर में कोई एक्सेलरेटर्स नहीं थे. मेरे दौर में मेंटर्स नहीं होते थे. आईबीए isn't really known for creating entrepreneurs, to be very honest. उस अब तो खैर माशाल्लाह से we've produced great founders and pretty much Pakistani unicorns as well. लेकिन उस वक्त IBA always said अच्छी जगह नौकरी मिलेगी. IBA wasn't really known for creating great entrepreneurs. तो मेरे साथ ये चैलेंज था उस वक्त. बट या नाउ टुडे आई वुड रियली से assess the opportunities and then plan your roadmap. So work backwards rather than just roll the dice. And still take calculated risk. Sometimes 100%. वो रिस्क जो है वो आप समझते हैं कैलकुलेटेड है, मगर किसी और के नजर से कैलकुलेटेड नहीं होता. वो मैंने आज एक पोस्ट भी लिखी, आपको पता है मैं भी कंटेंट इज माय लव. मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं I'm a big कंटेंट fan. मेरी. तो नहीं, थैंक यू वेरी मच. तो आज मैंने वो लिखी कि सेल्फ डाउट्स जो है ना वो, तो मैंने उसका स्टार्टिंग यही है कि आई एम सक्सेसफुल बिकॉज आई टेक रिस्क एंड आई हैव True. एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस इन माय ओन सेल्फ. ये इस तरह से है कि देखें, वो जो जहाज कैप्टन होता है जो जहाज चलाता है, उस एक 36,000 फीट के ऊपर दुनिया का हर काम हो रहा होता है तकरीबन. खाना भी चल रहा है, लोग टॉयलेट भी जा रहे हैं, सो भी रहे हैं, मूवी भी देख रहे हैं, एंटरटेन भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा होता है. और वो सारा का सारा जहाज जो है वो दो लोगों के हाथ में होता है टेक्निकली, जो उस कॉकपिट में बैठे होते हैं. तो आप देखेंगे जब दैट आई मीन जब आप कुछ काम करना शुरू करते हैं तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है. अगर आप वो करेंगे नहीं तो यू विल नेवर लर्न इट. लाइक मुझे कोई बंजी जंपिंग करने के लिए मैं नहीं करूंगा बिकॉज मैंने कभी की नहीं है. मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं कर नहीं सकता. अगर मैं करूंगा तो मैं आगे बढ़ूंगा. और यही आई थिंक जो एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट है वो
उसके अंदर इस एक फोकस का होना बहुत जरूरी है कि लेवल ऑफ डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे नजदीक वंस यू आर एन एंटरप्रेन्योर, यू आर एन एंटरप्रेन्योर फॉर लाइफ। इवन कि अगर आप कहीं जॉब भी करेंगे उसके पास जाके, तो योर अप्रोच विल बिकम अ वेरी एंटरप्रेन्योरल अप्रोच। आई मीन, देखिए, आधी जॉब तो कितने कोई रिस्क ले लेता है, राइट? कि उसकी जॉब, पैसे आ रहे होते हैं, सारी चीजें चल रही होती हैं, कोई इतना इशू नहीं होता, और फिर देन यू गेट ग्रिप ऑन थिंग्स, और आप थोड़ा बहुत मनूवर मैनिपुलेट जो भी आपके यहाँ आप कर लेते हैं हम चीजों के हम्म, साथ ना। ब्रू मिस्टेक आ गया हम्म, 2013 के अंदर। और ब्रू मिस्टेक के, लाइक यू नो, ब्रू मिस्टेक का मतलब ब्रू मिस्टेक क्यों रखा, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू अंडरस्टैंड। मुझे पता है कि किसी हद तक जो है वो जादुई जो झाड़ू है उससे कुछ शायद इसकी वो हो, बट ये जरूर बताइए। और पहला क्लाइंट लेने में क्या मुश्किलात पेश आई और कैसे मिला? ग्रेट। अच्छा, तो मैं पहले पार्ट को जरा एड्रेस करता हूँ। अच्छा, ब्रूमस्टिक नाम, आई स्टार्टेड जब ब्रूमस्टिक हमने शुरू की, हम 6 पार्टनर्स थे बाय द वे। ओके। I was the only full-time partner, and then I had other 5 partners who were obviously doing other things at the same time. नाम इसका ऐसे आया, हम सब बैठे हुए, नाम कोई कह रहा है इसका नाम सिक्स सिग्मा रखो, ब्लू ऑरेंज, ये वो, बुल्स आई, व्हाटएवर। एंड देन कोई नाम समझ में नहीं आ रहा था। देन किसी ने कहा यार लेट्स जस्ट कॉल इट ब्रूमस्टिक, राइट? अच्छा, अब होता क्या है कि जब आप नाम रखते हैं, आप उसको जस्टिफाई करते हैं। किसी ने कहा हाँ विल कम एंड क्लीन अप द मैस, किसी ने कहा नो विल हम्म। फ्लाई एवरीवेयर, but there हम्म। was no rationale. The only rationale where I jumped in was I said, yeah, let's call it broomstick because it's a great conversation starter. 9 out of 10 times जब भी मैंने किसी से कहा यार मेरी कंपनी का नाम ब्रूमस्टिक है, they start off with, oh, so is there a story, is there any sorcery, why did you call it broomstick? And scientifically it's proven then when you ask a question you are more receptive to the answer. And in हम्म। my line of work, especially in every business, if you are selling a service and if you are not being asked a question, they will not be receptive to your elevator pitch. So that was the whole psyche behind it. कि the name was just dropped randomly. हम पिज्जा हट में बैठे सब पिज्जा खा रहे थे कि नाम क्या रखें। हमारे एक पार्टनर ने कहा कि यार let's just call it broomstick. I said yeah, let's do it. And then बाकियों ने कहा यार क्यों, what sort of name? I said no, because it is such an interesting name. The other person is bound to ask us किसका नाम broomstick क्यों रखा आपने? And then you've got them in psychologically. They're then waiting for you to answer. So that was the एब्सोल्युटली story behind that. फैंटास्टिक। सो जो भी इस वक्त सुन रहा है, देख रहा है, तो देखें, इन्होंने पूरी साइकोलॉजी बता दी उसकी, कि जो आपके सामने वाला जिससे आप कन्वर्सेशन शुरू कर रहे हैं उसको ट्रिगर करें कि वो आपसे सवाल पूछे। और वो बहुत और इम्पोर्टेंट है कि आप अगर उस सवाल का जवाब, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको आप ट्रिगर करते हैं कि वो सवाल पूछे, जब आप उसका जवाब देते हैं तो वो ज्यादा रिसेप्टिव होते हैं। इससे रिलेटेड एक चीज बताऊं, जब मैंने पहली किताब लिखी थी 2012 में, तो आपने बिजनेस शुरू किया 2013 में, मैंने पहली किताब लिखी थी 2012 में, और उसका नाम था बूट स्ट्रैपिंग योर कैरियर। Yes, I तो जब read it. मैंने किताब लिख ली, और उसकी किताब की स्टोरी अलग है, वो कभी आप सुनाएंगे आपको कैसे लिखी, क्या हुआ, और क्यों, क्या उसका एक रीजन क्या था किताब लिखने का। तो मैं अब उसका नाम ढूंढ रहा था। मैंने कंटेंट सारा लिख लिया था, मुझे पता था कि ये कैरियर डेवलपमेंट से मुतालिक किताब है, आप कैसे आगे जाते हैं, क्या होता है, मेरी लाइफ में क्या रहा। मैंने कुछ लोगों से बात की थी, उनके इंटरव्यूज उसमें शामिल किए वगैरह वगैरह। कुछ मेरी इंस्पिरेशन थी डिफरेंट पब्लिकेशन से, वो मैंने कुछ चीजें डाली थी उसमें। तो अब जब बात आई इसके ऊपर के नाम क्या रखें, तो मेरे एक दोस्त हैं जो कि ब्रांडिंग वगैरह उनकी एजेंसी भी थी पाकिस्तान में, उनसे उन्होंने बड़े ना बहुत सारे नाम बताए। उस जमाने चैट जीपीटी तो नहीं होता था, तो people were really creative, right? So he came up with a lot of ideas, lot of names. मुझे कोई पसंद नहीं आया। एक दिन मैं सोच रहा था बैठा हुआ, और मैंने कहा कि देखो, जब आप अपने कैरियर में होते हैं, एंड पर्टिकुलरली दैट बुक वाज आल्सो नॉट अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, इट वाज अबाउट लाइक आप जॉब में कैसे जाएंगे, कॉलेज से यूनिवर्सिटी से निकल के जॉब कैसे लेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा व्हाट डू यू डू व्हेन यू गेट इनटू अ जॉब? यू एक्चुअली बूटस्ट्रैप। जो आपका लैक ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, नॉलेज कम होती है, अभी आप नए नए आते हैं, फिर आपकी प्रमोशन हो जाती है, तो भी आपके पास ये होता है कि लैक ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, फिर आपकी फिर प्रमोशन हो जाती है। सो यू कीप बूट स्ट्रैपिंग योर सेल्फ थ्रू आउट योर कैरियर। तो मैंने उसका नाम रखा बूट स्ट्रैपिंग योर कैरियर, जिसमें बड़े आर्ग्यूमेंट हुए, बूट स्ट्रैपिंग तो एंटरप्रेन्योरशिप की का लिंगो में आता है। वो मैंने कहा यार देखो, आप अगर जॉब भी कर रहे हैं ना, अगर आपका एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट है, यू विल डू दैट जॉब इन अ बेटर फैशन, आप उसको बेहतर तरीके से कर सकेंगे। Of course.
तो ये चले, हो गया ब्रूम स्टिक की नाम हो गया फॉर्मेशन, हो गई, हमारा। 6 लोग थे। जी, छह छह लोग लोग थे। थे, वाओ। तो एग्जैक्टली, पाइप हाँ। पाइप बहुत छोटा हिस्सा था, छोटी छोटा हिस्सा आ रहा था। इट वाज फर्स्ट कस्टमर। बिकॉज जब जब आप जॉब छोड़ी तो आई वाज डूइंग थ्री थिंग्स। एक, मैंने टेक स्टार्टअप किया, जो विच वाज फार अहेड ऑफ इट्स टाइम। वो दैट डिडंट किक ऑफ, क्योंकि उस जमाने में फंडिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था। देन कंसल्टेंसी भी कर रहे थे, आई वाज डूइंग दैट टू कीप, टू मीट माय एंड्स। और फिर ऑब्वियसली ब्रूमस्टिक भी शुरू की। पहले साल हमाद भाई, द टोटल अमाउंट ऑफ बिजनेस जो ब्रूमस्टिक ने किया, और काफी लोग आजकल के दौर में तो आप सुनते हैं जी वैल्यूएशन ये वो, वैल्यूएशन मिलियंस में पहुंच गई। मेरे कुल टर्नओवर फॉर ईयर वन वाज 8,000 dirhams, right? दिरम्स, ओके। Dirhams, which is probably $2,500 Canadian dollar, right? $2,500, हाँ। And मैंने कहा यार ये मसला हो गया है। So this is not what I was expecting. $8,000 इज सॉरी दरम। और जाहिर है अपनी जेब से आप फंड करें। हमने कहा चलें कोई नहीं, एवरी बिजनेस ईयर वन इज अ लॉस मेकिंग बिजनेस। हम्म। हिम्मत बांधी। ईयर टू, टोटल रेवेन्यू 24,000 dirhams। नॉट गेटिंग बेटर, ठीक है, हाँ। महीने के 2,000 dirham आना शुरू हुए, लेकिन फिर भी नुकसान। गाड़ी बेच दी, सेविंग्स खत्म होना शुरू हो गई, स्टार्टेड टैपिंग इनटू। वालदेन को कानो कान खबर नहीं होने दी, क्योंकि वो फिर एक एक ईगो का मसला था। सो हाँ। आई रिमेम्बर आई नेवर शेयर्ड द स्टोरी विद माय पेरेंट्स। सो आई कॉल्ड माय फादर, मैंने कहा अब्बू एक गड़बड़ हो गई है। एंड ही इज लाइक व्हाट? मैंने कहा अब्बू, ईयर वन 8,000 dirhams, ईयर टू 24,000 dirhams। अब समझ में नहीं आ रहा है इफ आई कैन गो इन। सो माय फादर सेड समथिंग वेरी फनी, सेड कि अगर तुम्हें हमारी फिक्र है तो दाल रोटी में खुश थे और हैं, हमने तो कभी वी नेवर हैड एनी एक्सपेक्टेशंस। तो और वो हम कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। सो इफ वी आर योर कंसर्न, देन दैट्स टेकन केयर ऑफ। और बताओ क्या मसले हैं? आई सेड नहीं अबू, ये है कि एक ईगो का भी मसला है, आई रियली वांट दिस टू वर्क, ये वो। ही सेड के, एंड ही सेड समथिंग व्हिच स्टक टू मी टिल टुडे। आई एम ट्राइंग टू रिमेंबर द एक्चुअल वर्ड्स, बट ही सेड के आई डोंट वांट यू लुकिंग बैक। मैं ये नहीं चाहता कि तुम ना जब 50-60 साल के हो जाओ मेरी तरह, एंड यू लुक बैक एंड यू से यार काश मैं एक साल और लगा देता, राइट? सो या, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही सेड। अब मैंने सोचा यार, मैंने कहा अबू ठीक है, इफ दैट्स हाउ यू से इट, देन अम्मी को आप संभालें। तो आई आउटसोर्स दैट ओनली टू हिम। दैट डिडंट गो वेल फॉर हिम, बट फिर मैंने, देन ईयर थ्री वाज व्हेन थिंग्स टर्न आउट। हमें पहला मेजर क्लाइंट हमारे पास डूक आया। डू इज वन ऑफ द मेजर टेलको टू कंपनीज। मोबाइल टेलीकॉम। एग्जैक्टली, दुबई में दो कंपनीज हैं, एतिसलात एंड डू। एंड वी गॉट सैमसंग, एंड दैट चेंज थिंग्स फॉर अस। मैं ये नहीं कह रहा कि ये थ्री में काया पलट गई। We were like, लेकिन ये कि नो, दैट गिव अस अ बिलीफ। या। इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क ऑल्सो, मैं भी एक मेरे एक जानने वाले हैं, वो भी उन्होंने जॉब छोड़ी, बिजनेस शुरू किया और सारी चीजें। तो वही कहते हैं कि यार अगर आप 5 साल तक बिजनेस में खड़े हो गए ना, तो छठा साल बहुत डिफरेंट होता है। और अमूमन हमने पढ़ा भी, कई जगह पे लिखा है, हमने खुद भी देखा है इस चीज को, कि पीपल समटाइम क्विट टू अर्ली। हम्म। और वो बिल्कुल, अच्छा, बिजनेस में कोई जो आपकी है ना, वो जो क्या कहना चाहिए, वो एंड लाइन नजर नहीं आती। आपकी रेस की जो एंड लाइन होती है हम्म। वो नजर नहीं आती, वो पट्टी नजर नहीं आती। नहीं, वो कभी नहीं आती। वो बस होती है कहीं, लाइक वो एक आप को कोई बना लें, डाल लें कि जी मेरा एम्बिशन है कि $50,000 का रेवेन्यू है, वगैरह वगैरह। आई मीन यू कुड एक्चुअली मेक 100,000 ऑल्सो। आप बेशक प्लान आपने 50,000 का किया है, मगर आपकी कंसिस्टेंसी और आपकी एक पैशन के साथ जो आप एक ड्राइव कर रहे होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बड़ा रेजोनेट करता हूँ इस चीज से कि जिस महीने पैसे नहीं आते, हम्म। ऑल्दो कि हमेशा बिजनेस में कहते हैं आप पूरे साल को देखें, शॉर्ट टर्म नहीं सोचें, गल्ला मत समझें इसको, ये दुकान नहीं है। लेकिन मतलब जिस महीने पैसे नहीं आते ना, उस महीने बिल तो देने होते हैं भाई, एग्जैक्टली। तनख्वाहें भी देनी होती हैं। और वो जो दिल बैठ रहा होता है ना, वो उस मैं समझता हूँ, एंड गिवन माई ओन 6+ years नाउ इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, आई मीन जितनी ज्यादा रेजिलियंस जो है ना, वो इस काम में आती है जब आप अपना काम कर रहे हो। और आप जितनी ज्यादा, आपको क्या कहना चाहिए कि अपने पे कॉन्फिडेंस भी आता है, और आपको
अल्लाह ताला की एग्जिस्टेंस के ऊपर मजीद यकीन बढ़ जाता है आपका। True. बिकॉज थिंग्स हैपन, लाइक ऐसा नहीं है हम्म, कि वो चल नहीं रहा हो, अनलेस कि आप बहुत ही बड़ा कोई जो है ना ऐसा मार दें जिसमें मतलब आपने पैसे आपका $1,00,000 हैं, आपने जनाब $1,00,000 के बिटकॉइन खरीद एक बिटकॉइन खरीद लिया, तो देन ऑफ कोर्स वो अगर 10-12 हज़ार डॉलर नीचे जाएगा तो दैट्स अ लॉस। आई मीन इफ यू आर स्मार्ट इनफ एंड यू आर स्टिल टेकिंग रिस्क, एंड बट वो रिस्क जो है बड़े मैनेजेबल हैं, एंड तो थिंग्स कीप मूविंग। अच्छा, मेरा जो सवाल है यहाँ पे वो ब्रूमस्टिक, सो आई रियली वांट टू टॉक अबाउट ब्रूमस्टिक अ लॉट, यू नो, बिकॉज दैट्स योर बेबी and it has now grown to a very sizable business, माशाल्लाह। तो मुझे ये बताइए आप, आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि एक पीआर कंपनी में और एक कंटेंट कंपनी में क्या फर्क है? लाइक यू कॉल योरसेल्फ अ कंटेंट कंपनी, सो एक पीआर कंपनी भी तो यही काम कर रही होती है, इसी किस्म का काम कर रही होती है, तो उसमें और आप में क्या, आई मीन डिस्टिंक्ट डिफरेंस क्या है? ये मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जो सुनने वाले हैं उनके लिए भी। Sure. Hamad bhai, iska obviously the definitions of this industry keep on changing every time जब platforms evolve करते हैं. But traditionally, digital content is basically you're creating content which is ROI or measurement driven. That's the core हम्म। difference between a production house and digital content in the way how we've nurtured the industry within the Middle East and the Western markets. होता क्या है कि अगर हम एक एनिमेशन या एक पीस ऑफ कंटेंट बना रहे हैं फॉर ए सोशल चैनल, वही चीज़ एक प्रोडक्शन हाउस भी बना रहा होता है, बट द वे वी क्रिएटेड इज इनसाइट्स ड्रिवन, it's customized for the platform, and it's customized to perform, deliver, and deliver on ROI. So that is precisely the way a digital content agency works. PR is driven more by earned media. So आप content को curate करते हैं, हम्म। and then that content is placed by different content repositories or publication houses, and those placements are either organic or through relationships or through paid mediums. लेकिन जब वो उनकी ROI is very different. You're not spending money for placement. The platform is not dictating the delivery of that content, because the delivery of that content is determined by every, जैसे आपने डॉन में डलवा दिया, don.com, हम्म। news.com, khaleejtimes.com, तो वो है. लेकिन हम लोग मेटा, द टिकटॉक्स, इंस्टाग्राम, उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर खेल के कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं. The content is optimized for every channel. It is supposed to deliver across every channel and deliver on ROI. So it's a bit of a cause and effect relationship in the content space. मैं थोड़ा सा इसको ओके। वो क्या है कॉमन ले टर्म्स में, आई डेंट वांट टू गेट इनटू टर्मिनोलॉजीज बिकॉज देयर आपके काफी सारे लिसनर्स ऐसे हैं हु आर नॉट फ्रॉम द कंटेंट साइड एंड टेक साइड. या मगर अगर मैं मजे की बात बताऊं, आज के दौर में तो हर शख्स कंटेंट हाँ. का एटलीस्ट क्लेम तो कर सकता है कि, जी. क्योंकि हाँ, आप या तो कंटेंट लिख रहे हैं या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं या कंटेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो करेक्ट. कंटेंट से नहीं भाग सकते आप। ये एक जमाना था कि आपने टीवी बंद कर दिया तो अब, बट आप टीवी बंद कर देंगे तो आप फोन पे लग जाएंगे। हमारी हैबिट्स बहुत चेंज हो गई हैं, जी. और द वे वी कंज्यूम कंटेंट और इवन क्रिएट कंटेंट वो भी बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। एंड टू ऐड अ चले जी, जबरदस्त पर्सपेक्टिव, हो गया। एक जमाना ट्रेडिशनली वो ये होता था कि एनीथिंग रनिंग ऑन टीवी इज anything else, but anything या running on digital is content. That was how या the traditional या definition was, but that changed. राइट। तो अब हम दोबारा आते हैं कि छह लोग Hmm. से फिर सिर्फ फहद अली, दैट ट्रांजिशन। और मैं एक्चुअली कुछ और भी चीजें पूछूंगा, बट क्विकली हम अगर इसको डिस्कस कर लें तो। Sure, we started off with 6 partners. Year one, जाहिर है जब आप 8,000 dirham कमाते हैं साल में तो everyone gets jittery. तो year two में आके फिर हमने एक डिसीजन लिया ऑब्वियसली सारे पार्टनर्स ने कि in order to sustain this business everyone needs to inject some equity. So उसमें जाहिर है we had 4 people drop out because obviously their personal circumstances did not dictate that. So we were left with 2 people. हमने कहा यार लड़के मर के किसी ना किसी तरीके से हम इसको चलाएंगे. My other partner was very supportive. A good thing was he was very strong on finance and accounts, while I was a guy on the creative side. So we kind of complemented each other. So and we drew boundaries. मैं दखल नहीं देता था on finance and accounts. I'm very business driven. I'm very revenue driven. I'm very delivery driven. हम्म। He was the guy who comes in as a conservative approach and says, "Fahad, थोड़ा सा, scale back." हम्म। So we then ran the agency all the way till 2021 together. फिर उसके बाद 21 के बाद I had some aggressive plans because I wanted to grow the business internationally. 21 तक we were there. My US में footprint था, हमारा पाकिस्तान में तो था ही था.
or Dubai में, but I wanted to expand a bit more rapidly because I felt our proposition was right to take it to the other markets. Like I said, strategically, Dubai was emerging on the global map, so it felt better to go out and say in the West कि we are a Dubai-based agency. तो Mm-hmm. उससे फिर we then agreed to part ways, and then I bought out my other partner, and then I own Broomstick 100%. ओके, सो सारे पेन अब आप पेन हो गए, अब क्योंकि अब जो है वो ब्रूमस्टिक जो है इट्स 100% योर ओनरशिप, correct. 100% your baby. But in the past few years, you have, alhamdulillah and mashallah, grown many folds. और आपकी एग्जिस्टेंस जो है सऊदी अरेबिया में भी अभी रिसेंटली हो गई, जी और दूसरी मार्केट्स में थी, कनाडा के अंदर भी आपके आपके क्लाइंट्स हैं जिनके लिए आप काम करते हैं। आप कनाडा स्टार्टअप एसोसिएशन भी में भी बहुत एक्टिव आपका रोल है, और भी कुछ चीजें पाइपलाइन में है जो कि अभी जाहिर सी बात है आई थिंक अभी डिस्कस नहीं कर सकते, बट and of course you have got remote teams sitting in Philippines and in Pakistan. yes Now time zones, like different you know I won't call it barriers but behaviors, डिफरेंट जगह पे क्लाइंट का बिहेवियर डिफरेंट जगह पे डिफरेंट होता है, जो आपकी डिलीवरी टीम है उसका बिहेवियर डिफरेंट होता है। देन यू हैव द कोर टीम सिटिंग इन दुबई, एंड आई हैव सीन दैट टीम, some of them at least in October during GITEX Expo and North Star. I mean, how do you do all that? That's my question. Ah, so there's a lot of questions in there, but I'll try to address them one by. So Ahmad bhai, and you and I know this, हमारी इतनी बातें हुई हैं off this podcast के being an entrepreneur is not a career, it's a lifestyle. You can't just say I'm an entrepreneur and act all cool about it. ये एक lifestyle आपको engage करना पड़ता है और embrace करना होता है. And आपकी scale of your business dictates that. And I have so many of my close friends. One of my best friends, wo is वक्त, he's sitting in DC and he's running his company in Pakistan, and मैं होता हूँ, and you and I are on calls till late Yeah. night. I think it's just a sheer motivation. When you're an entrepreneur, you're actively engaged in the business. You don't just treat it as your child, but you treat it as a part or an extension of you. So फिर वो sense of ownership is a key driver. There comes a time when it becomes physically debilitating. That is where you need to start. In my case, I have to split my time. जैसे अब मैं कनाडा में होता हूँ for some trips, तो मैं अपना टाइम ऐसे मैनेज करता हूँ कि सुबह रात के 3 बजे उठे, कॉल्स की, फजर पड़ी, सो गए, then wake up after 2-3 hours and manage it. It takes its toll, but that's the only way to do it. And I think, Alhamdulillah, touch wood, I've got a great team, super motivated. Uh, I think part and parcel of that is basically they see me engaged. थोड़ा सा प्रेशर होता है उनके ऊपर कि ये तो अल्लाह का बंदा हर वक्त ही ऑनलाइन होता है. बट द अदर थिंग इज दे वेरी पैशनेट. द किड्स, मैं तो किड्स ही कहूँगा हम लोग. द टीम आई हैव इज सुपर ड्रिवन, great ethics, great morals, great energy, and I think it's just the way you treat them and the energy you pass on to them. देर आर स्टेजेस जहाँ पे आपके फाउंडर भी नेगेटिव एनर्जी पास ऑन करता है या वो मोटिवेटेड नहीं होता, वो ट्रिकल्स डाउन टू योर टीम. सेट कल्चर नहीं चलता ज्यादा से. फाउंडर कल्चर स्टिक्स अराउंड, एंड देन आप हमेशा फाउंडर ही रहते हैं. इवन इफ योर बिजनेस इज 15-20 years, in today's day and age you have to be actively involved. So the team is great. We cover multiple time zones. उनके विद इन मैंने हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन की हुई है, एंड they manage their timelines accordingly. I'm guilty of not following it myself, but I've never imposed it on them. I do not tell them how to manage their day, but definitely keep an eye, and they're responsible and have the autonomy to ascertain how they spend their day, provided they're delivering things, and that's all that matters to me. And that's a great leadership style. If you really want to grow your business, something that I really did during even my job, like I'm always an entrepreneurial mindset के साथ ही मैंने काम किया है, तो मैं अपनी जॉब पे भी होता था. आई डोंट केयर कि आप अपने क्यूबिकल में बैठे हुए क्या कर रहे हैं. एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू डिलीवर व्हाट यू आर सपोज टू बी डिलीवरिंग. और एक जो चीज और भी होती थी, एंड इसके ऊपर भी हम वेरी क्विकली शॉर्ट सी बात करेंगे, जो जो मैं करता था, मैं वो बता रहा हूँ, उसके ऊपर आप बताइएगा कि आप किस तरह से करते हैं. आपने ब्रीफली तो टच किया है उसको.
तो क्योंकि मैं डेवलपमेंट सेक्टर में काम करता था, और डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर सर्टेन प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे किसी भी जगह हो सकते हैं, कुछ में केपीआईज होते हैं उसके, आपके पार्टनर्स होते हैं वगैरह वगैरह, जो भी उसकी अपनी जो है वो अपनी नॉमेनक्लेचर होता है काम करने का। तो और हम लोग बहुत छोटी टीम थी, लाइक सिर्फ 4 लोग की टीम थी हमारे पास। मेरा हमेशा जो स्टाइल था वो ये था कि हम हर प्रोजेक्ट को 1 by 1 डिस्कस करते थे, और उसका रोड मैप डिफाइन कर लेते थे कि देखो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या रिस्क आ रहे हैं हमारे पास, और इसको कैसे लेके चलना है। तो हमें एक्चुअली हम उसको डॉक्यूमेंट कर लेते थे, नॉट समथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स, कुछ ऐसी नहीं, वेरी सिंपल वर्ड में एक हम उसका फ्लो चार्ट सा बना लेते थे, लाइक लिटरली इस तरह करके, कैसे देखो यहाँ पे ये हो सकता है, यहाँ पे ये हो सकता है, यहाँ पे हम ये करेंगे। और जब वो हमारे पास होता था, तो जो भी प्रोजेक्ट लीड कर रहा होता था उसके पास एक पूरी एक लाइक फ्रेमवर्क होता था कि अच्छा ये चीज हो सकती है। तो सरप्राइजेस बहुत कम होते थे, और होते भी थे, काम में सरप्राइज ना हो तो फिर काम क्या रह गया। हम्म, तो ऑप्शन होता ये था कि वो मेरे तक आते ही नहीं थे, वो पीछे सॉर्ट आउट हो जाते थे, यानी मेरा वो टाइम बच जाता था। और लिटरली जॉब वाली बात है, एंटरप्रेन्योरशिप की बात नहीं है। लिटरली मेरे पास कभी कभी कुछ करने को नहीं होता था, आई वुड फील सो गिल्टी, और यार मैं सुबह दफ्तर जा रहा हूँ, मैं यूएसडी सैलरी ले रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, लिटरली आई हैव नथिंग टू डू। nothing to do. सो आपका जो लीडरशिप स्टाइल है वो भी मैं देख रहा हूँ कि जो मुझे अंदाजा हो रहा है कि बहुत ज्यादा डेलीगेट करते हैं लोगों को, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देते हैं, साथ में उनको ऑटोनॉमी भी देते हैं उसके डिसीजन लेने की। फायदे और नुकसान क्विकली। फायदे तो ऑफकोर्स ठीक है, काम चल फायदे रहा तो, है। नुकसान इसका कभी कभार ये होता है कि ऑब्वियसली कुछ चीजें ऐसी होती हैं, यू मिस्टेकिंगली फील दैट द टीम इज एक्सपीरियंस इनफ टू टेक अ कॉल ऑन दोस डिसीजंस, वो डिसीजन गलत हो जाते हैं, एंड एज एन एंटरप्रेन्योर यू हैव टू सक अप एंड मूव ऑन। एक और जाहिर है सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि, एंड दिस इज अ वेरी, जो एक टीम के एक सर्टेन कल्चर होता है, नॉट एवरीवन साइंस अप फॉर दैट। तो आपस में लोग के डिफरेंसेस अल्लाह का शुक्र है नहीं हुए हमारे यहाँ, बट ये कि एवरीवन हैज अ डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग, एंड जब इतनी ऑटोनॉमी होती है कि एवरी पर्सन ऑन देयर ओन बिकम्स एन एंटिटी, तो वो थोड़ा से कल्चरल क्लैशेस आते हैं या वर्किंग स्टाइल्स में क्लैशेस आते हैं। तो उस पर आई नीड टू स्टेप इन एंड मेक श्योर कि दैट इज वेयर आई नीड टू पुल रैंक, बट दैट इज समथिंग। एक और बड़ा एक, आई वुडंट से नुकसान, बट दैट इज एन एरिया that every entrepreneur needs to keep an eye on, especially when in a very highly delegated culture, is because आप इतनी delegation कर देते हैं, the autonomy, uh, the team, I don't call them employees, the team feels they don't have a direction sometimes, uh, and वो directionless approach ultimately builds up into dissonance, और उसको हम्म। पिक करना बड़ा मसला होता है, because that doesn't really set in overnight, it builds up over time, and then by the time it builds up, it either becomes too late, or then you have to rework everything, और किसी को अनलर्न कराना is a bigger challenge। जैसे अगर मैं किसी, आई एम जस्ट टेकिंग, मैं किसी अपने क्रिएटिव मैनेजर को बिल्कुल ही अकेला छोड़ दूं, मैं कहूँ यार यू हैव ऑल द ऑटोनॉमी व्हाटएवर, इन हिज माइंड इज गोना बी लाइक आई डोंट नो व्हाट the वे टू strategy गो। is, career path हाँ। kya hai, whatever, and he's going to build up हम्म। to a point where he realizes कि I think I've done a wrong thing and I've wasted all this time. And this guy who thinks he's delegating and giving me all the autonomy doesn't even talk to me. तो वो Right. आपको एक डेलिकेट बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, टू डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको ये ना लगे कि आप डिक्टेट कर रहे हैं, यू कीपिंग एन आई ऑन देम, बट ऑल्सो कीप दैट कम्युनिकेशन इन प्लेस। Right, so the वर्ड मैं इसके यूज करता हूँ वो है हैंड होल्डिंग। ट्रू, हैंड होल्डिंग, या तो आपको हैंड होल्ड करना पड़ता है। और मैं क्विक एक मिसाल दे दूं, एक जगह पे द यंग फेलो हमने हायर किया, अपॉइंट किया, बेटर वर्ड, फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। और उसको मैंने कहा कि देखो अगर तुमने इस प्रोजेक्ट को कर लिया, उसके बाद उसको समझ लिया कि ये क्या है, यू गोइंग टू ग्रो एंड नोबडी कैन स्टॉप यू। एंड दैट प्रोजेक्ट वाज कॉर्पोरेट कंप्लायंस एंड एंटी करप्शन। ये दो चीजें जो थी, वो ये मैं बात कर रहा हूँ प्रोबेबली 2013-14 की बात कर रहा हूँ, या हाँ 13-14 की बात कर रहा हूँ। उस वक्त पे ये चीजें बात होना शुरू हुई थी इसके ऊपर, अकाउंटेबिलिटी की, इसकी उसकी, कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट इसके अंदर, सीमेंस का इशू हो चुका था और सारी चीजें हो गई। तो उसको मैं समझाया कि इस तरह से करो। अच्छा काबिल, बड़ा मेहनती बच्चा था, और वो उसने करना शुरू किया। मगर मैं हमेशा उसे सवाल पूछता रहता, अच्छा आप क्या किया, आप क्या किया। तो एक जगह पे एक प्रेजेंटेशन करनी थी उसको उसके अराउंड। तो जिस वक्त वो
और देयर वाज लाइक वेरी सीनियर पीपल इन द रूम। मैं आपको फादर बताऊं, जैसे को वो प्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे जैसे वो प्रेजेंट कर रहा है एंड मैं उसके यहाँ खड़ा हुआ था। हम्म, तो वो कह रहे हैं सर आप बैठे हैं, आप मैंने कहा यार मैं ना शेर की कछाड़ में अकेला नहीं फेंक सकता, क्योंकि मुझे पता है कि क्या सवाल आप पूछेंगे, हो सकता है तुम जवाब नहीं दे सको उनके। तो आई एम विद यू, डोंट वरी, सवाल आएगा मैं जवाब दूंगा, यू जस्ट हम्म, प्रेजेंट योरसेल्फ। सो काइंड ऑफ यू बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस इनटू योर टीम, दैट कि आप साथ खड़े में और आप चीजें लेके चल रहे हैं। चलें जी, जबरदस्त हो गया। और मैं अब ये सिर्फ पूछना चाहूंगा आपसे कि माशाल्लाह ब्रूमस्टिक ग्रो कर रही है। और मैं एक वर्ड यूज करना चाहूंगा कि फ्रेम, लोग ऑप्टिक्स का वर्ड यूज करते हैं जो भी कर रहे हैं, मैं यहाँ पे फ्रेम का वर्ड यूज करूंगा कि आपका फ्रेम नेक्स्ट 5 years का क्या है फॉर ब्रूमस्टिक। नेक्स्ट 5 years का एक तो ये कि strengthen our presence in the western markets, primarily because डिजिटल स्ट्रैटेजी, कंटेंट एंड इनोवेशन का अभी भी रॉक बेड्स वही इकोनॉमीज हैं, एंड वी वांट टू बी अहेड ऑफ द कर्व, एंड देयर इज नो बेटर वे टू बी अहेड ऑफ द कर्व देन टू बी इन दोज मार्केट्स। आप एक अर्ली अडॉप्टर बन जाते हैं ऑटोमेटिकली इन द ईस्टर्न मार्केट्स, मिडल ईस्टर्न हो गई, साउथ एशिया हो गया। तो दैट इज वन। द सेकेंड इज टू ऑब्वियसली इवॉल्व आवर बिजनेस। हर कोई एआई की बातें कर रहा है, हो कोई जन एआई की बातें कर रहा है। The way we want to morph and develop our business is कि we want to evolve a company from a creative services company into a creative services technology company. And उसके ऊपर हम पिछले 1 साल से काफ़ी aggressively काम कर रहे हैं, where we are trying to automate, where we're trying to add a lot more AI practices in terms of how we're creating content, जो सभी कर रहे हैं, but हमारी थोड़ी सी different approach है। AI के हम models को differently ले रहे हैं। Plus partnerships and collaborations with some global players, which we'll be working on soon, जहाँ पे हम एक different set of services लाना शुरू करेंगे AI के अंदर। So our goal and pretty much the next 5 years is all about evolve करना कि we are a creative services technology company. We want to strengthen our presence both footprint wise or business wise in the Western markets. And primarily अपनी पाकिस्तान की जो हमारी presence है, obviously the team, the fabulous team जो हमारे लिए काम कर रही है at a global level, उसको थोड़ा सा और enhance और enrich करना in terms of skill set. Because मेरा हमेशा से मॉडल ये रहा है कि I do a promote from within strategy. हम लोगों को अंदर से ग्रो कराते हैं। आई डोंट लाइक टू पैराशूट पीपल इन। सो एक अच्छी एक हमारी एक सप्लाई चेन रहती है वेयर वी एबल टू क्रिएट एंटरप्रेन्योर्स। फनी इनफ ब्रूमस्टिक पिछले जितने सालों से हम ऑपरेट कर रहे हैं, 13 साल हो गए माशाल्लाह से, वी क्रिएटेड एंटरप्रेन्योर्स। जो भी ब्रूमस्टिक छोड़ के आता है अपनी कंपनी बनाता है। मुझे खुशी भी है इस बात की, बिकॉज दे डोंट गो एंड वर्क फॉर अनदर कंपनी, दे they go and create their own businesses. Some people have left and joined other companies, but they always come back and say, yeah, this was a different culture altogether. But we've produced 4, 5, 6 other entrepreneurial ventures, which is for me what essentially my contribution to the economy, directly or indirectly, देखा जाए। जबरदस्त। तो और ये फ्रेम जो है वो थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है, ऐसी बात है 100%। कोई चीज 100, वो क्या कहते हैं, रॉक इन, वो कंक्रीट नहीं होती, बल्कि आप उसको फ्लेक्सिबिलिटी के साथ लेके चलें तो आप जो नई अपॉर्चुनिटीज तेजी के साथ इवॉल्व हो रही हैं उसमें आप जंप इन कर सकते हैं। यू नेवर नो, यू मीट समवन टुमारो ड्यूरिंग योर फ्लाइट एंड एन True। अपॉर्चुनिटी स्ट्राइक्स एट दैट पॉइंट इन टाइम। जबरदस्त हो गया। मैं दोबारा एक्चुअली आऊंगा अब, और मुझे पता है कि आपने इनिशियली जिक्र भी किया इस चीज का कि आपकी जो जर्नी है ऑफ कोर्स वेरी इंस्पिरेशनल। आपके पास लोग आते हैं या आप सवाल भी पूछते होंगे आपसे, थोड़ी बहुत जो भी आपका टाइम है उसमें आप मेंटरिंग भी कर रहे होते हैं। तो ये एक लाइक अ प्रोसेस है जो कि मेरे ख्याल में हमें करते रहना चाहिए। मैं भी कुछ ना कुछ टाइम निकालता रहता हूँ लोगों को मेंटर करने के लिए, जो भी लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, और मैं पेड मेंटरिंग भी करता हूँ, होता है Of ये course। मेरी सर्विस है जो मैं ऑफर करता हूँ। बट सवाल मेरा ये है कि आईबीए के जो जो लोग आपके पास आते हैं, आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट आईबीए, क्योंकि आप आईबीए के ग्रेजुएट हैं और वो एक 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 आपके जो है ना वो एक इमोशनल उसकी एक वो एक वैल्यू बनती है वहां पे कि जो एक हमारा ग्रेजुएट है, सीनियर है, हम उससे आके बात करें। वो आके आपसे क्या सवाल पूछते हैं? लाइक मैं बिल्कुल इसको ओपन रख रहा हूँ, लाइक क्या 2-3 सवाल वो पूछते हैं आपसे आके जो कि बड़े कॉमन डिनोमिनेटर्स हैं? So that's a good question, Hamad bhai. So तीन चार
ब्रॉड कैटेगरीज हैं विच कीप ऑन कमिंग अप अगेन एंड अगेन। एक तो एंटरप्रेन्योर्स के पर्सपेक्टिव से एक होता है, एक इट्स अ वेरी लोडेड एंड अ वेरी ब्रॉड क्वेश्चन, बट हाउ डू वी स्टार्ट अ बिजनेस एंड ग्रो इट टू द स्केल एट विच यू डिड। उसका कोई सिंपल आंसर नहीं है, बिकॉज आपने तो पूरी अभी मैंने जो कहानी सुनाई है, हर एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी सेपरेट होती है, सो दैट्स वन। एंड उसका आंसर इज वेरी सिंपली talk to as many entrepreneurs as possible, analyze opportunities, be prepared, take a calculated risk, अपने environment को करें। So हम उनके साथ, so basically because मैं UAE chapter का president भी हूँ, so what I try to do is I connect them to fellow entrepreneurs, not just within IBA but within Dubai या इधर उधर within the global circle। अगर कोई आता है कहता है मेरे पास एक fintech का idea, how do I grow it, so I connect them to a fintech entrepreneur, go through their pitch decks, ग्रामर सही करना उनके फिजिक्स की उनके वो करना, तो उस एक्सटेंट तक हेल्प आउट करते हैं। The other question that keeps on coming up again and again is के how do we move outside Pakistan and secure a job in the Middle East and then आगे उसके ऊपर obviously we try to connect them to recruiters, अपने experiences से senior alumni के साथ उनको connect करते हैं। IB की अच्छी बात ये है, IB का एक बहुत बड़ी strength उसकी alumni है। 20-25 हज़ार लोग हैं स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड, इनफैक्ट शायद ज़्यादा ही होंगे, एंड देव सर्व्ड इन कैपेसिटीज ऑफ बीइंग प्राइम मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान टू Hmm. बीइंग फाइनेंशियल एडवाइजर्स टू गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड। मैं तो सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। सो एक इतना बड़ा स्पेक्ट्रम है आईबीए के अलमनाई का, एंड उनको बस इट टेक्स इज समवन टू, you're a second degree connection away, so उनको Hmm. mobilize करना and bringing them to the table, तो उस तरीके से उनको कनेक्ट करना इज वन थिंग वेयर वी ट्राई टू हेल्प देम आउट। बट सबसे बड़ा यही होता है चैलेंज, हम उनको समझाते हैं हाउ टू गेट इन, हाउ टू स्टार्ट दैट कॉन्वर्सेशन। जैसे आपने कहा कि आप मेंटोर हैं, यू एक्चुअली टेल पीपल हाउ टू things as basic as how to create the LinkedIn account, उस पे कैसे maneuver करना है, so connecting them to people like you even, inshallah in the future, so that they know कि how they can mobilize LinkedIn। क्योंकि आज भी ये होता है कि सीवीज आ जाती हैं, ईमेल बॉडीज नहीं होती हैं, सब्जेक्ट टाइटल्स नहीं होते, so these are basic things that we work on। The third primarily is people who are doing career pivots, Mhm. कि पूरी जिंदगी बैंकर है, now they want to become, let's just say, a tech entrepreneur। इसमें the good thing is we have such a big network of experienced alumni out there। उन लोगों को आप लाइफ स्किल्स शायद उतने ना बता सकें because they've already lived it, but the good thing is connecting them to people who've done those pivots, वो is something that we're really good at doing। उनको connect करा alumni के अंदर ही, and so these are the three key things that always emerge। हमने एक कम्युनिकेशन चैनल खोला हुआ है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। दुबई में तो वी डू वीकली मीटअप, से कैजुअल होता है, कोई फॉर्मल नहीं होता, मैं अनाउंस कर देता ग्रुप में हम यहाँ बैठ के शाम की चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी यहाँ पी रहे हैं। कनाडा आया होता तो रजिस्टर टू दी IB alumni in Canada, वहाँ पे वी हैव जैतून, उमर सगीर रनिंग डूइंग अ ग्रेट जॉब, उनको मैसेज किया कि आई एम इन टाउन, तो एक गेट टुगेदर हो गया alumni का, कॉन्वर्सेशन हो गई। सो द मोर पीपल मीट online, virtually or physically, the more they tend to walk away with experiences and value। ये मेरा एक बिलीफ है। एंड लोगों को साथ बिठाना virtually या physically is the biggest thing that we can do as a service to not just IBA So but that to our countries। so that's a great value that you are offering to your fellow IBA के जितने भी लोग हैं उनके लिए, या किसी और जगह पे भी आपने अगर बिजनेस ग्रेजुएट हैं तो भी जाहिर सी बात है, कोई आएगा तो ये जरूरी तो नहीं है कि वो कहेगा जी मैं IBA का हूँ तभी फाहद अली इसको हेल्प करेंगे, बट तो आई थिंक ये बहुत जबरदस्त है। तो इस पूरी चीज में देखें, और ये इस पे कोई दो राय नहीं है कि आपका नेटवर्क जो है वो आपको जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है वो आपको कहीं और से नहीं मिल सकती, बिकॉज somehow you are emotionally like attached to each other through the institution। और एक जो दूसरी चीज जो कि आप कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त कर रहे हैं, इन एडिशन टू द नेटवर्किंग की जो आप उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, वो ये कि यू आर एक्चुअली नर्चरिंग द होल कम्युनिटी, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी इज far beyond the concept of a network, far mature, far powerful, far valuable। तो ये बहुत जबरदस्त चीज है कि आईबीए के लोगों का नेटवर्क एंड देन द कम्युनिटी, और वो फिर पूरी की पूरी चेन आप उसको बिल्ड कर रहे हैं। और ये इसके लिए बड़ी अप्रिसिएशन, मतलब मैं, क्योंकि जाहिर है मैं भी 10 बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, आईबीए के लोगों को भी जानता हूँ, नॉट एवरीबडी डज दैट, इवन जिन लोगों के पास जॉब होती है एंड वी ऑलवेज से यार हमारे पास टाइम नहीं है, विच आई डोंट बाय एक्चुअली। मगर जो बिजनेस कर रहा है और डिफरेंट
टाइम जोन्स में बिजनेस कर रहा है और बिजनेस ग्रो भी कर रहा है और टीम भी मैनेज कर रहा है और क्लाइंट्स भी देख रहा है, वो भी इतना टाइम निकाल रहा है टू हेल्प the community to grow and to become more prosperous. That's really kudos to you. I mean, you are really doing a wonderful job. और ये करते रहिएगा, इसमें आप इंशाल्लाह। पीछे मत हटिएगा। मैं समझता हूँ कि ये this is the most valuable thing that we can give to someone ट्रू in the ट्रू, whole community. आई जो एग्री। चीज मैं देखता हूँ, और मैं इस पे आपका भी सवाल, जो आपका भी थॉट लेना चाहता हूँ, कि देखिए मेरे पास नॉट ओनली आईबीए और बहुत जगह से लोग आते हैं जिनको मैं मेंटर करता हूँ या जो मेरे क्लाइंट्स बनते हैं बाद में। मैं एक चीज जो देखता हूँ, और आई एम जस्ट ट्राइंग इट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ योर कंटेंट एंड फिल्म वगैरह का जो आपने बताया, कि स्टोरी टेलिंग का बहुत बड़ा फुकदान है। यानी जो लोग आते हैं, नॉट ओनली द यंगेस्ट पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड, बट जो लोग ऑलरेडी फील्ड में हैं, जिनके पास वाकई निस्बतन ज्यादा स्टोरीज होनी चाहिए, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते और अपनी कोई स्टोरी नहीं बता पाते। सो इफ यू डोंट टेल योर स्टोरी, यू डोंट इंस्पायर एनीवन, राइट? वो कोई ना कोई स्टोरी मदर तेरेसा की होगी, अब्दुल सत्तार ईदी की होगी, हमारे वो जो क्या नाम है, डॉक्टर बारी खान इंडस, तो ऑल दो स्टोरीज आर रियली इंस्पायरिंग। और बातों का तो वो बताते भी नहीं है, लोगों को पता होती। आप क्या उनको कुछ बताते हैं इस बारे में, या कुछ आप बताना चाहिए कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज एक्चुअली टू लर्न दैट लिटिल आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग? अमाद भाई, सबसे पहली बात तो ऑब्वियसली व्हेन आई एम टेलिंग देम अबाउट माय लाइफ जर्नी, दैट इन इटसेल्फ इज अ स्टोरी टेलिंग एक्सरसाइज। और वो इसलिए नहीं होती कि इट्स नॉट प्रैक्टिस्ड, इट्स नॉट रिहर्स्ड, इट्स जस्ट बेयर बोन्स फैक्ट्स। और वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप अपने करियर की स्टोरी और वो नैरेटिव एक कन्विंसिंग मैनर में, इन अ वेरी ऑनेस्ट हार्ट टू हार्ट मैनर पे नहीं बता सकते, देन फॉरगेट एवरीथिंग एल्स, राइट? तो जितने भी स्टूडेंट्स और पीपल फ्रॉम आईबीए या इवन बियॉन्ड, में पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई के साथ भी काफ़ी एक्टिवली इंगेज्ड हूँ यहाँ पे। उनके भी सेशंस होते हैं, मेंटरशिप्स व्हाटएवर, आई स्पीक एट देयर फोरम्स एज वेल। अगर आप अपनी स्टोरी और अपना नैरेटिव इन अ straight from the heart in the most emotive manner नहीं बता सकते, then forget everything else. So definitely the art of storytelling is it's not a dying art. It is in fact an art which is actually more prevalent today. इसलिए बहुत ज़रूरी है because as humans we relate to emotional cues, and that's what stories do. अगर आप नोटिस करें, हम आजकल बातें कर रहे होते हैं जी, चैट जीपीटी एंड ऑल दैट स्टफ, बट एट द एंड ऑफ द डे, जब a human is delivering words, she is doing it with a bit of emotion and passion, and that is the human side of storytelling. So storytelling is a human art. It is not dying, and it is perhaps the most efficient and effective way of communicating left out there. Forget everything else in the digital space. I don't know if that answers your question though. एब्सोल्युटली। तो ये मैं एक्चुअली इसको सिर्फ इसी थॉट को री एम्फसाइज करना चाह रहा था कि देखें, जो भी इसको देखेगा, जैसे क्लिप्स देखे, अगर आप ये एक चीज सीख जाते हैं अपनी जिंदगी के अंदर कि आप, सबसे पहले तो आपकी कोई स्टोरी है, सो व्हाट इज सो एक्साइटिंग अबाउट यू, लाइक देयर हैज टू बी सम एक्साइटमेंट, राइट? क्योंकि कंटेंट एजेंसीज तो और भी हैं। व्हाट इज सो एक्साइटिंग अबाउट ब्लूम स्टिक? द फर्स्ट थिंग इज द नेम, राइट? एंड द अदर थिंग इज ऑफ कोर्स फादर अली's पर्सनैलिटी, इट्स वेरी हम्बल, वेरी। तो यकीनन अगर आप अपने बारे में नहीं जानते, अपने बारे में बात नहीं कर सकते, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो फिर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस लिटिल मैसेज को कन्वे करने का, कि प्लीज प्रैक्टिस इट। एंड देयर इज नथिंग अबाउट ब्रैगिंग, देयर इज नथिंग अबाउट ब्रैगिंग and kind of repeating yourself. It's about inspiring others. तो अपनी स्टोरी को उस तरह से अगर आप क्राफ्ट करें, nothing beats that, as you said. और ह्यूमनाइज्ड स्टोरी जो है ना, वही वही आगे जाती है। लास्ट क्वेश्चन, Sure. मेरा क्वेश्चन ये है कि फहद अली जो है वो एक रिवाइंड का बटन दबाते हैं और अपनी उस एज में चले जाते हैं जहाँ पे ये आईबीए के अंदर गए थे, और इनका पहला दिन था आईबीए के अंदर। क्या फीलिंग थी? और अगर आपको अब मौका मिले उस पहले दिन जाने का या पहले सेमेस्टर के अंदर, आप अपने आप को क्या मैसेज देंगे? क्योंकि वो मैसेज देन विल बिकम अ मैसेज फॉर द कम्युनिटी दैट्स गोइंग टू वॉच दिस वीडियो। और क्या चीज डिफरेंट करेंगे?
Oh, that's a tough one. Uh, Shall I start off with what I would not like to change? Uh, जो मेरी दोस्तियां आईबी के पहले दिन में हुई वो आज तक कायम है एंड दैट्स अ फैक्ट So सो make friends. मेक फ्रेंड्स होल्ड ऑन टू देम बिकॉज देखिए स्कूल कॉलेज आईबीएम में जो आपके दोस्त होते हैं ना दे आर योर फ्रेंड्स बाय वर्च्यू ऑफ हाउ दे सिंक रिलेट टू यू Mm. उसमें जॉब्स करियर वे यू लिव द कार यू ड्राइव इतने सारे एड ऑन्स आ जाते हैं लेटर ऑन इन लाइफ विच डिटर्मिन हाउ यू रिलेट टू अ पर्सन लेकिन वो जो दोस्ती हैं वो बड़ी प्योर होती हैं और यूनिवर्सिटी में आके वे व्हेन यू बिकम वेरी इंडिपेंडेंट यू हैव अ वेरी डिफरेंट आउटलुक ऑन लाइफ दोज फ्रेंडशिप्स मेक फ्रेंड्स डे वन don't change that. Even if you are not an extrovert, you will always find someone to relate to. तो definitely वो जरूर करें. I guess Hamad bhai, I wouldn't want to change anything. In fact, I would say just take it in with your stride. खुले दिमाग के साथ जाए. हाँ मुझे कुछ कभी कभार ये हुआ था कि मेरा my first class मेरे जहन में था कि जी मैं फाइनेंस नहीं कर सकता. I am a marketing major, right? I was not an extrovert. I'll be very honest. मैं काफी खामोश तबीयत का होता था. Most of my friends will pretty much, add their advocation to this. All of this changed with time. लेकिन ये था कि I was always of that mindset. I'm not good with numbers. Finance मुझसे हो नहीं सकता और मैं सिर्फ एक मार्केटिंग मेजर हूँ और उससे मैंने अपने आप को एक शेल में बंद कर दिया. And I did obviously regret and obviously pay the price later on जब finance के subjects वगैरह आए and because I went in with with that mindset that this is not my cup of tea I had closed off to even accepting that आज business चला रहा हूँ I think I'm not a CEO I'm a CFO I am looking at audits I'm doing my work with my I spend more time doing my financials than I do on anything else or a mistake today could be very, very dangerous and lethal to my business as opposed to a mistake being done back in university. तो वो अल्लाह का शुक्र है कि ओवरकम हो गया. सो नंबर वन इज डोंट क्लोज ऑफ योर माइंड. यूनिवर्सिटी जाएं, ऑलवेज चेक इन योर स्टीरियोटाइप्स एंड प्रिजम्पशंस एट द डोर. जो आपको लोग मिलेंगे यू नेवर नो हाउ दे माइट बिकम द मोस्ट क्लोजेस्ट पीपल इन योर लाइफ. I definitely got that advantage. I met the best people I've met till date. And what is the last thing that you would suggest to someone who has just entered and that person has got a journey of another 4 years at IB or at any other university? One of the most important personality traits, and this is something जो I've learned and I've practiced all my life, and most of the people yourself included, Hamad bhai, is always be humble in life. आपकी अकड़ कह लें, your glove कह लें, या आप attitude जो भी कुछ कह लें, that won't serve your best interest in life. हम बातें बड़ी करते हैं. We see a lot of people around us who कहते हैं कि यार you should always be humble, whatever, but it's not about practicing what you preach. आजकल, thousands of people come up to me and say, यार Fahad, you're always so approachable. And जैसे हमाद भाई आपने भी so kindful for your kind words. आप कहते हैं यार you're very humble. Humbleness is that investment which pays off your whole life. आपको Mhm. दुनिया में भी आखिर में भी अजर मिलेगा ये तो हमें पता है राइट. सो Mhm. स्पिरिचुअली तो हम ड्रिवन है ही है बट इट पेज ऑफ इन सो मेनी वेज इन लाइफ. आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि गॉड विल ओपन अप डोर्स, लाइफ विल ओपन अप डोर्स. यू वुडंट इवन नो how this works in your favor. So always be humble. If you're humble to life, life will reward you. So kabhi bhi, don't lose that characteristic in life. Be active on all socials as much as possible. जब मैं सोशल्स की बात करता हूँ ठीक है व्हेन आई से ऑल और एटलीस्ट ऑन वन और टू ऑफ देम बिकॉज आजकल के दौर में दैट इज योर विंडो एंड योर कम्युनिकेशन चैनल टू द वर्ल्ड. आप अपने आप को आइसोलेट चाहे जितना करना चाहें आप नहीं कर सकते. सो माई मैसेज टू एवरी वन इज बी वेरी एक्टिव ऑन लिंक्डइन फ्रॉम डे वन. बी वेरी एक्टिव ऑन फेसबुक सिंस डे वन. मोस्ट ऑफ देम आर. आप अपने सारे चैनल्स को एक्सप्लोर करें. यूज दैट एज एन एक्सटेंशन ऑफ योर पर्सनैलिटी पर्सनली एंड प्रोफेशनली. ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज आजकल के दौर में पीपल गेज मेजर एंड असेस यू बेस्ड ऑन व्हाट योर ऑनलाइन पर्सनैलिटी इज. एंड अगर आप उस ऑनलाइन पर्सनैलिटी को इग्नोर कर देंगे hundreds of thousands of people will never get a chance to talk to you physically.
but they will definitely come and see you virtually. And the personality and the character that you build in the online space is going to be your face to the world. तो उसको कभी भी इग्नोर ना करें, उसको अंडरमाइन ना करें. इनफैक्ट दैट शुड बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यू शुड फोकस ऑन फ्रॉम द फर्स्ट डे एट IBA और एनी यूनिवर्सिटी. जबरदस्त. सो देखें, हम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एन आवर एंड हाफ हमारी कन्वर्सेशन हुई है. वेरी इंस्पायरिंग. बहुत कुछ मैंने सीखा और बहुत सारी चीजों की रीअश्योरेंस मुझे हुई कि जो है इस तरह की चीजें करने से आप आगे बढ़ते हैं कैरियर में, और आपको जो आपकी जो सिस्टम है, जो हमारे अराउंड सिस्टम है, कुदरत का जो वर्ड यूज करते हैं हम लोग, उससे हमें सपोर्ट मिलती है. तो रिस्क लें, हम्बल रहें, सीखते रहें और कंट्रीब्यूट करें, कम्युनिटी बिल्ड करें, नेटवर्क करें और पार्टनरशिप भी करें. मगर जहाँ पे जरूरत पड़े वहाँ पार्टनरशिप से आप अलग भी हो सकें और या फुल्ली एक्वायर करें. जॉब करना अच्छी बात है. बाद में 10 साल तकरीबन जॉब की. मैंने 36 ईयर्स जॉब की बिफोर एक्चुअली स्टार्टेड माय ओन बिजनेस. तो जॉब भी करें और उसके साथ साथ अपने लिए भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी तलाश करें जहाँ पे आप अपने पैशन को फुलफिल कर सकें. तो विद दैट मैं इस पॉडकास्ट को एंड करता हूँ. फाद, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. आई नो इट्स क्वाइट लेट इन दुबई. हमारी तो अभी सुबह शुरू हुई है. एंड होपफुली we'll touch base again and we'll talk to you again. For sure. Thank you so much. Such a pleasure. Thank you for having me. Really appreciate it. Thank अपना you. ख्याल रखिएगा. Thank you. Okay. Assalamu alaikum. खुदा हाफिज. Thanks.